Hello everyone. Welcome to my channel. So, this is my first podcast when I'm going to live and give this particular podcast. So, basically, this is the first time I'm going to, uh, upload this podcast. Before this, I have, the I'm a book author basically. So, this podcast basically related to my book, which I have launched recently last month. So this is related to basically the manifesting your desires, your needs, basically. So before begin with this podcast, so I would like to thanks my audience, my fans, my readers, whoever read my books, and also whoever going to listen this podcast and give me the interest. So basis on your interest, I will come back with the second podcast also. So let's begin. uh, okay, not to waste much time, so let's begin with this podcast. So basically ये वर्ड जो है, ये बुक जो है बेसिकली अल्टीमेट गाइड है ताकि आप मैनिफेस्टेशन के आर्ट को समझ सकें. ओके, उसकी प्रिंसिपल को, उसकी टेक्निक्स को समझ सकें कि कैसे आपकी ड्रीम्स, आपकी डिजायर्स को वो ट्रूली जो है वो बेसिकली रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करता है. ये कंप्लीटली एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है. ठीक है, हाउ योर थॉट्स, योर बिलीव्स, योर एक्शन शेप योर रियलिटी. ओके, सो when I'm going to speak about this, you listen this about this, like how this basically you can how the universe energy work to basically shape your dream into reality. Okay, so let's begin with this. So I'll give you the practical, I give you the exercise also in this the reading of the books also. So this basically the book, this podcast, at the end of the podcast of my complete book will give you the clear understanding how the manifestation works. Okay, so it's all about your mindset. Okay, the universe belief. So let's begin with this. So basically the let's move first start with the chapter 1. What about this chapter 1? So basically the chapter 1 is understanding manifestation. Okay, so before you know reading the complete book, before reading how to manifest your wish, your desires, first you need to understand कि manifestation होता क्या है. So I technically, I practically experiment this. So that's why I am going to आप लोगों को मैं इसीलिए ये बता रही हूँ बिकॉज मैं खुद प्रैक्टिकली इसको कर चुकी हूँ टेस्ट. सो मैनिफेस्टेशन क्या है? एक प्रोसेस है आपके फोकस का, आपके इंटेंशन की पावर. ओके, जो कि आपकी लाइफ के अंदर उस विश को रियलिटी में कन्वर्ट करे. ओके, प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी आपकी विश है, जो आप चाहते हैं कि वो आपको मिल जाए, आपकी वो विश कंप्लीट हो जाए, उसको इमेजिनेशन का प्रोसेस है. ओके, आपकी विशेस को विजुअलाइज करने के बाद जो आप मैनिफेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मैनिफेस्टेशन. ओके, सो अगर हम लोग, ये तो मैनिफेस्टेशन का हो गया. अब हम आगे बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन में जो यूनिवर्सल लॉज होते हैं, ठीक है, जो मैनिफेस्टेशन को करने में हेल्प करते हैं, कौन कौन से लॉज हैं. इवेंचुअली अगर हम लोग टॉकिंग करें तो मैनिफेस्टेशन जो है वो फंक्शन है किसके अंदर, एक यूनिवर्सल लॉज का फ्रेमवर्क होता है. ओके, सो without wasting any time, let's move on to the next slide. What are those laws? What are those universal laws? So basically तीन लॉज है हमारे.
बहुत ही सिंपल और टेक्निकली एक्सपेरिमेंटेड है। फर्स्ट जो आता है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। I guess everybody knows about this law of attraction. The terms knows that like attract. Okay, so this basically when you the energy you emit through your thoughts and emotions, okay, acts as a magnet that draws similar energies back to you. Okay, अगर हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये एक तरह से एनर्जी होती है, ठीक है। थ्रू योर थॉट्स, जो भी आप सोचते हैं, जो आपके इमोशंस होते हैं, ओके, उसमें एक मैग्नेट का काम करते हैं, ओके। जितनी एनर्जी आप पॉजिटिव एनर्जी दोगे उतनी एनर्जी आपको बैक होके मिलेगी, ओके। सेकंड जो अपना आता है वाइब्रेशन का लॉ ऑफ वाइब्रेशन। व्हाट इज दैट? एवरीथिंग इन यूनिवर्स वाइब्रेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी। यूनिवर्स के अंदर जितना भी कुछ है वो सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। योर डिजायर ऑल्सो वाइब्रेट, ओके। सो आपको क्या करना है? अलाइनिंग योर फ्रीक्वेंसी विद देम क्रिएट्स मैनिफेस्टेशन, ओके। थर्ड अपना आता है लॉ इंस्पायर्ड एक्शन। लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन बेसिकली वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज विजुअलाइजेशन, ओके। विजुअलाइजेशन और बिलीफ जो है मस्ट बी कपल्ड विद एक्शंस, ओके। सो ये जो लॉ होता है बेसिकली क्या होता है, जो भी आप ड्रीम करते हो, जो आपकी विश है, आप उसको विजुअलाइज करते हो, ओके, जो कि आपकी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट होता है, जो आपको मैनिफेस्ट करना है। अगर हम लोग मैनिफेस्टेशन की साइंस की बात करें तो साइंस बिहाइंड मैनिफेस्टेशन में क्या है? Okay, so the reticular activating system, जिसे हम लोग RAS बोलते हैं, a region of your brain that filters information according to your focus, is one important component. You can train your RAS, that means reticular activating system, to recognize opportunities, resources and pathways that are in line with your intentions by visualizing your objectives and reaffirming your desires, okay. So a personal reflection, consider this when you think of achieving a life goal, okay. पर्सनल रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो कंसीडर करिए एक चीज कि जब आप कुछ सोचते हैं कि लाइफ का कोई गोल है जो आपको अचीव करना है, क्या आपका इनर डायलॉग जो है वो आपको सपोर्ट करती है? मैनिफेस्टेशन बिगिंस विद फॉर इयर्स, ओके। आई बिलीव सक्सेस वाज रिजर्व्ड फॉर लकी पीपल्स. It was not until I started shifting my mindset, okay, embracing affirmations like I'm capable of creating my success, that opportunities started aligning. So कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आपको पॉजिटिव सोचना है। जब आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में शिफ्ट करेंगे, जब आप एक एफर्मेशन प्रेजेंट टेंस के अंदर बोलेंगे कि आई एम कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग माई सक्सेस, ओके, सो वो अपॉर्चुनिटीज अलाइन होनी शुरू हो जाएगी और यहीं से आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी बिगिन होती है कंप्लीशन तक की, ओके। मैनिफेस्टेशन की जर्नी में अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सरसाइज, ओके। क्या क्या एक्सरसाइज होती है टू बिगिन योर मैनिफेस्टेशन जर्नी? फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको अपना करंट वाइब्रेशन डिफाइन करना पड़ेगा. डिफाइन योर करंट वाइब्रेशन. Take a moment to write down your dominant thoughts and emotions. Are they rooted in abundance or scarcity? Okay, कुछ समय लीजिए. आपके जो भी डोमिनेंट थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उसको राइट डाउन कीजिए किसी पेपर पे, किसी डायरी पे. ओके. सेकेंड चीज होती है क्रिएट अ विजन स्टेटमेंट. ओके. आर्टिकुलेट in detail
what you want to manifest. Be clear, specific, and emotionally connected to this vision. जो भी आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं उसको डिटेल के अंदर लिखने ओके सो उसके लिए आपको क्लियर होना पड़ेगा, माइंडली पूरा क्लियर होना पड़ेगा, स्पेसिफिक होना पड़ेगा और इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा आपकी विजन के साथ. ओके थर्ड वन आता है डेली अफर्मेशन. व्हाट इज अबाउट दिस? सो लाइक एट द स्टार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट मैंने आपको एक टर्म बोली थी, अफर्मेशन नाउ इज वेरी फेमस. क्या होता है ये अफर्मेशन? डेली अफर्मेशन का मतलब है आप अपने डे को स्टार्ट करें अफर्मेशन से. ओके दैट रेनफोर्स योर बिलीफ इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द लाइफ यू डिजायर. जैसा आप चाहते हैं वैसे ही आपकी लाइफ को क्रिएट करेगा. ओके let's move on to the second chapter. It's a very small chapters but you will definitely understand. So what is second chapter? The title of the second chapter is the power of belief. Like in the previous chapter we talked about little bit about the belief. Okay so first of all, why belief matters? Okay, force behind manifestation is belief. Without it, deeds lost their power and intention falter. फाउंडेशन जो होती है ना मैनिफेस्टेशन की वो बिलीफ पे होती है. ओके जो कि हेल्प करती है आपकी जितनी भी विशेष होती हैं उसको रियलिटी में बदलने के लिए. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. थिंक ऑफ फार्मर. ओके प्लांटिंग सीड. एक फार्मर का एक एग्जांपल लेते हैं. Think of a farmer planting seeds. They don't see the crop right away. जब फार्मर अपनी प्लांट करता है सीड्स को तो उसको उसी समय तो क्रॉप नहीं दिख जाती. ठीक है उसने देखा कि उसको कोई भी सीड नहीं दिख रही. But they think seed will sprout with time, sunlight and water. In a similar way, your beliefs serve as the rich soil in which you desire basically. Okay so ये एक तरह का एग्जांपल है कि आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा. कोई भी चीज आसानी से नहीं मिल सकती. Okay now move on to the subconscious mind. Belief से ही अगला चीज आती है subconscious mind and belief. So the subconscious mind and belief that empowering or limiting can be found in large quantities in the subconscious mind. Okay so let's take an example. If you grew up hearing that money does not grow on tree, you might subconsciously believe that financially abundance is unattainable. ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया ये क्या हो गया? एक पॉजिटिव थॉट हो गया. जब आपने ये सुनते हुए आप बड़े हुए और आपने इसको बिलीव कर लिया. ठीक है आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको बिलीव कर दिया कि अब that financial abundance is unattainable. Conversely, if you were encouraged to think you can achieve anything with effort, this belief likely propel you towards success. Okay अगर आप ये सोचते रहेंगे कि भाई ये चीज तो आपको नहीं मिलने वाली तो वो आपकी बिलीफ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रहेगा तो वो आपको बाउंड कर देगा. आप सक्सेस की तरफ नहीं जा पाएंगे. Conversely, if you think, if you are encouraged, okay, आप अपने आप को encourage करते हैं, सोचने पे अपने आप को प्रेशराइज करते हैं कि that believe करते हैं you can achieve anything but just need to put some effort. ये जो बिलीफ है ये आपको
सक्सेस की तरफ लेके जाती है. ओके, द गुड न्यूज. So the good news is that the subconscious mind can be reprogrammed. Techniques like affirmations, visualization, and repetition help overriding limiting beliefs with empowering ones. Transforming limiting beliefs. जो जर्नी होती है हमारी मैनिफेस्टेशन की, the journey to manifestation begins by identifying and transforming the beliefs that holds you back. Here's how. कैसे हो रहा है? बताते हैं कैसे हो रहा है. Awareness, first of all. So pay attention to your inner dialogue. What thoughts arise when you think about your desires? Okay. Second, challenge the narrative. For every limiting belief, ask, is this absolutely true? More often than not, it's a story you have unconsciously adopted. Third one is replace with empowering beliefs. Create affirmations that reflect the reality you wish to embody. For instance, replace I'm not good with money with I'm learning to manage money wisely. Okay. So, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, जो आपने ऊपर की जो 3 पॉइंट्स सुने, स्टेटमेंट सुने, ओके, तो थर्ड में जो है, आपको अफर्मेशन को रियलिटी के अंदर रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको उसका अफर्मेशन क्रिएट करना पड़ेगा. जो भी आप सोच रहे हैं, अगर कुछ नेगेटिव है, आपको उसे पॉजिटिव वे में रिप्लेस करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको दिया था, रियल लाइफ टेस्टिमोनियल्स भी हैं कुछ, लाइक बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. सो लेट्स टेक कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जिससे आप आपके अफर्मेशंस कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस. डेली के 5 मिनट्स आपको स्पेंड करने हैं. ओके, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस. स्पेंड 5 मिनट्स डेली visualizing your desires outcomes. See it, feel it, and most importantly, believe it's already yours. अगर सिंपल लैंग्वेज में बोल तो विजुअलाइजेशन बेसिकली आपने जो भी विश किया है, जो भी आपके डिजायर्स हैं, 5 मिनट आपको स्पेंड करने हैं डेली. 5 मिनट इज वेरी लेस. ओके, आपको उसको देखना है जो आपको चाहिए, आपको उसको फील करना है that you already have this, और most importantly believe करना है कि वो आपके पास है, आपका हो चुका. Second is gratitude journaling. So gratitude journal क्या होता है? आपको डेली, हर दिन 5 चीजें करनी है. आपको लिस्ट डाउन करना है 5 things you are grateful for each day. Gratitude shifts your mindset to focus on abundance, reinforcing the belief that good things come to you. Third is mirror work. That is very important and it works definitely. Believe कीजिए कि mirror work काम करता है और बहुत फास्ट करता है. आपको क्या करना है? डेली आप मॉर्निंग में उठेंगे. ओके, एवरी मॉर्निंग स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, look into your eyes and repeat affirmation like I'm worthy of all the good things life has to offer. Okay, डेली मॉर्निंग के अंदर आपको मिरर के सामने खड़े होना है और आपकी आंखों में आपको देखना है और रिपीट करना है अफर्मेशन को, आई एम वर्दी ऑफ ऑल द गुड थिंग्स लाइफ हैज टू ऑफर. सो ये जो चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन में आपको हेल्प करेगी. आई होप यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट. दिस इज माय फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट. सो आई होप आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देंगे, मुझे अच्छी अच्छी फीडबैक्स और कमेंट्स देंगे टू इम्प्रूव दिस पॉडकास्ट इन माय नेक्स्ट एपिसोड, इन माय नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम लोग नेक्स्ट जो भी एपिसोड लाएंगे उसके अंदर हम लोग बात करेंगे दैट
क्लैरिटी इन इंटेंशन के बारे में बात करेंगे। ओके, सो 2 चैप्टर्स हम लोग नेक्स्ट और लेके आएंगे। एंड देन बिलीफ इन इज द फाउंडेशन, वो एक मैनिफेस्टेशन की और अफर्मेशन और सबकॉन्शियस माइंड की एक फाउंडेशन होती है। किस तरह से फाउंडेशन होगी, ओके, सो इस बारे में हम लोग ज़रूर बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई पॉडकास्ट। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।